أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے دوستو جو موضوع گفتگو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں میں زچگی کے بعد کون کون سے مسائل آ سکتے ہیں، یعنی جانوروں میں جو بچہ جب وہ پیدا کر لیتے ہیں، ڈیلیوری ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد کون کون سے مسائل انہیں درپیش آ سکتے ہیں۔ تو ان میں سب سے اہم جو مسائل ہیں ان میں سے 3 سب سے اہم ہیں۔ نمبر 1، جیر کا نہ ڈالنا یا جیر کا باہر نہ نکالنا، گائے ہے یا بھینس ہے، بھیڑ ہے یا بکری ہے۔ ہم زیادہ انہی پہ فوکس کر رہے ہیں اور اونٹوں کو بھی فوکس کر رہے ہیں کیونکہ حلال جانوروں میں یہی زیادہ تر ہمارے سامنے ان کے مسائل آتے ہیں۔ تو جیر کا نہ ڈالنا ہوتا یہ ہے کہ فارمر کیا کرتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی جب تک اب بچہ آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں جب تک جیر جانور باہر نہیں نکالے گا ہم اس بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے یا بولی نہیں پلائیں گے جو جانور کے تھنوں میں موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی رانگ پریکٹس ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کرنا یہ چاہیے فوری طور پر بچے کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا جب جسم صاف کر لیا، اس کی آنکھوں کو، اس کے ناک کو، اس کے منہ کو صاف کر لیا اور جانور کے سامنے اس کو رکھ لیا اور جانور نے اسے پورا لک کر لیا اور اس کو چاٹ لیا اور اس کو کلیئر کر لیا، تو آدھا گھنٹے کا ٹائم تقریباً گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد کرنا یہی ہے کہ اس کو ڈائریکٹ کریں، اس کو اٹھائیں یا تھوڑا سا اس کو اسسٹ کریں اور اس کی جو ماں ہے اس کے تھنوں کے قریب لے جائیں اور اس کی سکلنگ شروع کروائیں، تاکہ جب سکلنگ ہوتی ہے جانور جو بچہ ہے اس کے سکلنگ جب شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، خاص طور پہ آکسیٹوسن ہارمون۔ آکسیٹوسن ہارمون کا ریلیز ہونا اس وقت بہت ضروری ہے۔ وہ جتنا زیادہ پراپر طریقے سے ریلیز ہوگا آکسیٹوسن ہارمون، تو وہ جا کے اس جیر کو کوٹیلیڈنز سے چھڑوا کے باہر نکالنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ بچے دانی کے اندر جو ہیں چھوٹے چھوٹے بٹن کی شکل کے کوٹیلیڈنز موجود ہوتے ہیں اور یہ جیر ان کے ساتھ پھنسی ہوئی ہوتی ہے اور اٹیچ ہوتی ہے، اور اگر یہ آکسیٹوسن ریلیز ہوگا تو یہ ان بٹنز سے ان کو چھڑوانے میں، جیر کو چھڑوانے میں بہت سارے کوٹیلیڈنز ایک سائڈ پہ اور دوسرے سائڈ پہ ہوتے ہیں، جیسے یہ ہمارے بٹن لگے ہوئے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، اس طرح لگے ہوتے ہیں، اور جب یہ آکسیٹوسن جائے گا یہ آکسیٹوسن ان بٹنز کو کھلوانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آکسیٹوسن ریلیز نہیں ہوگا تو یہ بٹنز نہیں کھلیں گے، اور بٹنز نہیں کھلیں گے تو جیر باہر نہیں آئے گی، اور جب جیر باہر نہیں آئے گی تو انفیکشن کا خطرہ بڑھے گا، وہاں جراثیم گرو کریں گے، بیکٹیریا گرو کریں گے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جانور بخار میں مبتلا ہو جائے گا اور انفیکشن میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور یہ وہ کنڈیشن ہے جب اگر خدا نخواستہ جانور کسی انفیکشن میں مبتلا ہو گیا تو دونوں کو نقصان ہے، اس ماں کو بھی نقصان ہے اور اس بچے کا بھی نقصان ہے، اور الٹیمیٹ اس اونر کا نقصان ہے جو ان کو گرو کروا رہا ہے، جو ان کو پال رہا ہے۔ تو بھائی جان ویٹ نہیں کرنا، دوستو ویٹ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر بچے کو فوراً سکلنگ شروع کروا دیں تاکہ آکسیٹوسن ریلیز ہو اور وہ اپنا جا کے کام کرے اور جیر باہر آئے۔ اگر پھر بھی کسی وجہ سے جیر باہر نہیں آ رہی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کمزور ہوتا ہے، شروع میں ہی پہلے ہی اس کی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا گیا، سکلنگ بھی آپ کروا رہے ہیں، بولی بھی پلانا شروع کر دی ہے، پھر بھی آکسیٹوسن جتنا ریلیز ہو رہا ہے اتنا اس کے لیے کافی نہیں ہے بٹنز کو کوٹیلیڈن سے جیر کو نکالنے کے لیے، تو کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے انجیکشنز بھی اویلیبل ہیں، سینٹوسینان وغیرہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے فوراً رجوع کریں، اور اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو کوئی دوائی پہلے کوئی استعمال کروائیں گے، اور اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو اس کو مینولی اپنے ہاتھوں سے وہ نکال دیں گے، اور اس کے حساب سے وہ اینٹی بائیوٹکس بھی انجیکٹ کر دیں گے اس اینیملز کو جن کی وہ اس وقت ضرورت ہوگی، تو یہ فوراً کرنا ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا ہے کہ بولی جانور کے بچے کو زیادہ نہیں پلانی، 10% آف دا باڈی ویٹ کا 10% جتنا بنتا ہے اس کے حساب سے پلانی ہے۔
नॉर्मली 14-15 किलो का बच्चा होता है तो 1.5 kg को 2 खुराकों में आप तकसीम कर लेंगे। आधी खुराक पहले 6 घंटे में दे देनी है और आधी खुराक अगले 6 घंटों में कंप्लीट करवा देनी है। दूसरा सबसे अहम मसला जो कि ज़चगी के बाद जानवरों को फेस करना पड़ सकता है वो है पीछा मारना। इसको अंग्रेजी में प्रोलैप्स कहते हैं। प्रोलैप्स दो तरह का होता है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी होता है, प्रोलैप्स ऑफ विजाइना भी होता है। और ज़्यादातर जो फेस करना पड़ता है जानवरों को मसला वो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी बच्चेदानी का बाहर आ जाना, ये ज़्यादा मसला देखा गया है। और गायों और भैंसों की निस्बत भैंसों में ये मसला ज़्यादा नज़र आता है प्रोलैप्स का। और उसकी वजूहात क्या है? सबसे पहली वजह तो यही है कि जानवर कमज़ोर है। कमज़ोरी से मुराद ये भी है कि जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, और ये भी है कि अंदरूनी तौर पर उसके अंदर मिनरल्स की कमी है, नमकियात की कमी है, उसके अंदर विटामिन्स प्रॉपर वो पहले से उसको नहीं मिलते रहे। ख़ास तौर पर कैल्शियम और फास्फोरस का जो कम्बिनेशन है वो अगर प्रॉपर ना हो और पूरा ना हो तो जानवर प्रोलैप्स की तरफ चला जाता है। और दूसरा अगला जो हम मसला डिस्कस करेंगे उसकी तरफ भी चला जाता है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो प्रोलैप्स से बचने के लिए जानवर को कमज़ोर ना रहने दिया जाए, उसकी डाइट शुरू से ठीक रखी जाए। कैल्शियम और फास्फोरस की ख़ास तौर पे डाइट में एडिशन होनी चाहिए। उसके लिए डाई कैल्शियम फास्फेट मिनरल पाउडर अवेलेबल है, और बहुत सारी प्रेपरेशंस अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है जी, इसकी वजूहात में कि इम्बैलेंस हो जाता है बाज़ औक़ात। मसलन भैंसों को जब हम गर्मियों के सीज़न में किसी नज़दीक नहर में या किसी नज़दीक तालाब में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर नहलाने के लिए ले जाते हैं, या किसी ऐसी जगह पे चराई के लिए ले जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, नशेबो फराज जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ भी प्रोलैप्स के चांसेस भैंसों में ज़्यादा देखने में आए हैं। और इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन अगर हो गई है, जानवर को कब्ज़ का मसला हो गया है, तो ये मसला प्रोलैप्स का हो सकता है। अगर जानवर को सिर्फ तूड़ी पे ही रखा गया है या ऐसी खुश्क खुराक, ऐसा खुश्क चारा दिया जाता रहा है जिसने अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन कर दी है, और जानवर अगर कॉन्स्टिपेशन का मरीज़ है काफ़ी अरसे से, तो प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब डिलीवरी का टाइम आएगा या डिलीवरी के फ़ौरन बाद ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एहतियाती तदाबीर यही है कि जानवर को कमज़ोर ना रहने दिया जाए, जानवर की मिनरल डेफिशिएंसीज़ को पूरा करते रहा जाए और कॉन्स्टिपेशन ना होने दी जाए। तो हाजमा पाउडर की एक वीडियो हमने आपसे शेयर की हुई है कि बेहतरीन हाजमा पाउडर जानवरों के लिए आप बना के अपने पास रख लें। वो 12 इंग्रेडिएंट्स वाला पाउडर मैंने बताया हुआ है, आप उसको दोबारा देख लें। वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। वो आप हर हफ्ते एक दफ़ा या 2 मरतबा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यूज़ करवा सकते हैं अपने जानवरों को, और कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। हम ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि ओनर का प्रॉफिट कम ना हो, ओनर की टेंशन ना बढ़े, और मईशत उसकी मजबूत हो, और उसका जो अंदरूनी जो दिल के अंदर लाइफ स्टॉक बिजनेस के हवाले से प्लान है वो डिस्टर्ब ना हो। अगला जो तीसरा मसला है, सूतक का मसला दरपेश आ सकता है। सूतक कहते हैं मिल्क फीवर को। मिल्क फीवर का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो गाय है या भैंस है, और ये भी मसला भैंसों में ज़्यादा देखने में आया है, गायों में भी होता है। वो गाय भैंस जो कि आम तौर पर ज़्यादा दूध देने वाली होती हैं, उनका दूध अगर थनों से मुकम्मल निकाल लिया जाए और उसे फिर प्रॉपर कैल्शियम और फास्फोरस उसका पूरा ना किया जाए और उसको पूरी डाइट ना दी जाए, तो अल्टीमेटली जानवर को सूतक का बुखार हो जाएगा, मिल्क फीवर की बीमारी हो जाएगी। और ये डिलीवरी के बाद का सबसे एमरजेंसी वाला मामला है। इसमें क्या होता है कि जानवर की जो अलामात हैं वो ये हैं कि जानवर का टेम्परेचर डाउन चला जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे चला जाता है, जानवर
खड़ा नहीं हो सकता, और खड़ा होने की कोशिश करेगा तो थोड़ा सा जोर लगाएगा अगली टांगों से और फिर बैठ जाएगा। और तीसरी अहम बात है कि जब सीवियर केसेस होते हैं तो जानवर अपनी गर्दन एक साइड पे मोड़ के बैठा रहेगा, आर्म्स बांध में, इसको कहते हैं कि जानवर ने बुक्कल मार ली है। तो इस कंडीशन में करना ये होता है कि उसकी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है दूध ज़्यादा निकालने की वजह से या खुराक के पूरा ना होने की वजह से, तो उसको पूरा कर दिया जाए। तो जाहिर है इसमें ड्रिप लगती है, मिलफोन सी की ड्रिप अवेलेबल होती है, वो डॉक्टर साहब को बुला के आप लगवाएंगे, और फास्फोरस कैल्शियम का कम्बिनेशन भी साथ चलाएंगे ओरली 100-150 ग्राम्स के हिसाब से सुबह और शाम पूरे 10-12-15 दिन इस्तेमाल करवाएंगे। और ड्रिप कम अज़ कम ये है कि 600 ml डेली उसको चाहिए होगी 3 दिन के लिए, फिर जाके ये मसला हल होगा। और इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती है, वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं सिर्फ इसलिए ये सारी बातें आपको मुख्तसरन बताता जा रहा हूँ। तो इसमें वलायती नस्ल की गायों में भी ये मसला सूतक का ज़्यादा हो सकता है, और बफलो यानी भैंसों में भी सूतक के बुखार का मसला ज़्यादा हो सकता है, और सर्दियों में ये मसला ज़्यादा हो सकता है। और जिनको खुराक की डेफिशिएंसी रहती है और पूरा उनका कैल्शियम और फास्फोरस लेवल पूरा नहीं हो पाता, उनमें ये मसाइल रहते हैं। तो जानवरों को हमने पूरी एहतियात के साथ, पूरी तवज्जो के साथ पालना होता है। अगर हम पूरी एहतियात नहीं कर सकते तो ये रिस्क, फिर ये लाइफ स्टॉक बिजनेस वाला जो हम करते हैं, हमें असल में होता ये है, हम पूरी अवेयरनेस हासिल करते नहीं हैं और फिर एक काम को शुरू कर देते हैं, तो फिर उसमें जो मसाइल आते हैं उनका हल का हमें पता नहीं होता। हम अवेयरनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, और उस नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करके हम आपकी असिस्टेंस करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।